Honorable K. Kasturi Rangan ji, Professor, National Institute of Advanced Studies, Bangalore, and one of the key architects of the National Education Policy. Honorable Vice Chancellor, Professor Ramsu, my advisor, Sri Rajiv Rai Bhatnagar ji, Professor Nasir Iqbal, Registrar of this university, dignitaries on the dais, particularly Vice Chancellors, Honorable Vice Chancellors of two universities, Honorable Member of Parliament, Justice Masoodi, Chairman DDC, faculty, staff, and students, ladies and gentlemen. I am pleased to be with all of you today at the second convocation of Islamic University of Science and Technology. I take this opportunity to congratulate the students for their achievement. My greetings and gratitude to the Vice Chancellor, professors, teachers, and staff members for their excellent contribution in shaping young minds to contribute to the nation in various fields. I am truly proud of our daughters who have outperformed the boys and bagged the maximum gold medals. I am told out of the 72 gold medals, 46 are girls, and it is around more than 60% of total number of gold medalists. I can proudly say, as the unique half part of the society with the amazing qualities, brilliance, harmony, peace, creativity, compassion, leadership, individuality, courage, and deeply rooted to the ancient values, our daughters are advancing India's rise in the world. It is hugely gratifying for me as a chancellor to see Islamic University of Science and Technology, one of our topmost institutions of higher education. It is not only teaching you the necessary skills for intelligent technologies that will shape the future, but also giving you the power of ideas, a strong character, inquisitiveness, humility that will help you to pursue the diverse careers and steer the life ahead. Dear young friends, it is true that we must celebrate the achievements of our gold medalists and the toppers on the occasion of convocation, but more than that, we must celebrate the eternal human values, creativity, curiosity, critical thinking, righteousness, individuality, and compassion, which have been nurtured by this university. These values are invisible gold medals that will empower you to create a better future for the country as a responsible and enlightened citizen. Under the leadership and guidance of Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji, Professor Kasturi Rangan and his colleagues have scripted a national education policy that is empowering our students to succeed in machine-dominated world, and it is blended with the value system to ensure perfect balance in inner and outer growth of every student. In today's world, when we are building digital roads, witnessing rise of AI natives and new business models, it is important to ask a very fundamental question. What does it mean to be educated? साथियों, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब को जब कुरान शरीफ उतरनी शुरू हुई तो पहला शब्द इकरा था, विच मीन्स रीड, और मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब ने इस बात का जिक्र करते हुए लिखा है कि एजुकेशन इज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एवरी ह्यूमन एक्टिविटी। उसी तरह अगर हम वेद की बात करें तो वेद का पहला शब्द ऋग्वेद का खास तौर से अग्नि है, यानी कॉस्मिक इंटेलिजेंस। इससे निकलने वाली एक महत्वपूर्ण शक्ति जो जीवन में विजडम,
और स्पीड लाती है। और जो पहला सूत्र है, अग्निमीले पुरोहितः यज्ञस्य देवमर्त्योजम, यानी एजुकेशन अनुभव और विजडम के रूप में एक डिवाइन गिफ्ट है और ऐसा अनमोल खजाना है जो प्रकाश की तरह पूरे जीवन आपको सही रास्ता दिखाता है। और वैसे ही गुरु नानक जी कहते हैं, अहरण मति वेदु हाथियारू बुद्धि निहाई है। ज्ञान हथौड़ा है, यह वह चोट है जो जीवन के अनुभव से पैदा होती है। और हम जो नॉलेज इकट्ठा करते हैं वह तभी चमकेगा जब ज्ञान की चोट, आपका अनुभव उस पर पड़ेगा। और इसलिए मैं निजी तौर पर मानता हूँ कि एजुकेशन इज़ अल्टीमेट एक्सप्लोजन ऑफ आवर कॉन्शियसनेस। एजुकेशन हमारे अनुभवों, हमारी चेतना का परम शिखर है। एजुकेशन इज़ एनर्जी ऑफ द सोसाइटी, एजुकेशन इज़ ecstasy, education is elation, education is elegance, education is empowerment, education is enrichment, education enables you to attain the highest peak of life, and education elevates. एजुकेशन जो शब्द है एजुसियर से लिया गया है, जिसका वास्तविक अर्थ है टू ड्रॉ आउट। जो स्टूडेंट के भीतर है, जो विद्यार्थी के अंदर है, उसे कैसे बाहर निकाला जाए। लेकिन आज प्रश्न यही उठता है कि क्या हम ऐसा कर पा रहे हैं। हम भीतर के अनोखेपन को निकालकर निखारने के बजाय क्या विद्यार्थी को सिलेबस और किताबों के भीतर तो नहीं छोड़ के जा रहे हैं। पिछले कई दशकों से क्लासरूम का एकमात्र लक्ष्य था कि स्टूडेंट के भीतर ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को भर दिया जाए। हम शायद वास्तविक लक्ष्य को भूल गए थे और इसलिए ये प्रश्न मैंने उठाया कि व्हाट डज इट मीन टू बी एजुकेटेड। और मैं मानता हूँ कि एजुकेटेड होने का मतलब जिस स्टूडेंट ने आर्टिफिशियल तरीके से सब्जेक्ट्स के बीच खड़ी की गई दीवारों को तोड़ दिया, जिसने संसार में एक और मेमोरी हार्ड डिस्क बनने की बजाय इंडिपेंडेंट थिंकिंग, क्रिएटिविटी, रिसर्च और इन्वेंशन को तरजीह दी, जो धारणाओं से अलग हटकर अपने भीतर की क्यूरियोसिटी, क्रिटिकल थिंकिंग को जागृत कर सका, जिसने अपने टीचर की बातों पर पूरा विश्वास करने के बजाय उस पर सवाल उठाए, संदेह पैदा किए, कुछ और जानने की जिज्ञासा व्यक्त की, जिसके मन में सिर्फ विचार, थिंकिंग पैदा नहीं होती बल्कि नई चेतना भी जागृत होती है, जिसमें प्राचीन मूल्यों द्वारा आगे बढ़ने का साहस होता है। मैं समझता हूँ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी द्वारा यही प्रयास किया जा रहा है। हर एक स्टूडेंट सही मायने में एजुकेटेड हो। कैंपस के भीतर हमारा जो क्लासरूम है वह चार दीवारों की बजाय रियल वर्ल्ड और रियल लाइफ के आसमान को रिफ्लेक्ट करे, ताकि जिस दिन आप कैंपस से बाहर निकलकर प्रोफेशनल वर्ल्ड में प्रवेश करें तब आपके पास मेमोरीज़ का हार्ड डिस्क नहीं, सिर्फ इन्फॉर्मेशन का भंडार नहीं, बल्कि अनंत रचनात्मक शक्ति, इनफाइनाइट क्रिएटिविटी की ताकत भी रहे। थॉमस अल्वा एडिसन जब स्कूल में पढ़ते थे तब उनके टीचर ने रिपोर्ट कार्ड में उनके पेरेंट्स को लिखा था कि कृपया इस लड़के को स्कूल से निकाल लीजिए क्योंकि इसकी मेमोरी बड़ी कमज़ोर है और शायद कोई भी स्कूल या कॉलेज इसको पढ़ा नहीं सकता है। टीचर ने शायद एडिसन के भीतर यूनिकनेस को पहचाना नहीं, क्यूरियोसिटी को परख नहीं सका, इन्वेंशन की क्षमता को नहीं देखा, और अगर देखता तो शायद बाद में एडिसन ने 1000 से ज़्यादा जो इन्वेंशन किए उसके बीज अवश्य उसमें नज़र आते। अल्बर्ट आइंस्टाइन का एक दूसरा उदाहरण मैं उद्धृत करूंगा। एक व्यक्ति ने यह कहकर डांट दिया था कि तुम मैथ में बहुत कमज़ोर हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है। बाद में आइंस्टाइन के इन्वेंशन ने पूरी दुनिया बदल दी। थियरी ऑफ रिलेटिविटी अनेक पढ़े लिखे लोगों को समझने में कठिनाई होती है। आपके भीतर जो कुछ अद्वितीय है, आपकी जो यूनिकनेस है, आपकी जो इंडिविजुअलिटी है, उसे तराश कर बाहर निकाला जाएगा जब बगीचे के बिखरे बीजों में अंकुरित हो रहे फूलों की तरह आपकी चेतना में भी नए फूल लगेंगे। तभी हम सही मायने में कह सकेंगे यह बच्चा या यह बच्ची ये एजुकेटेड है और उसके व्यक्तित्व को निखार करके स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी ने अपने कर्तव्यों का सही तरीके से निर्वहन किया है।
अकल में जो घिर गया ला इंतहा क्यों कर हुआ, अक्ल में जो घिर गया ला इंतहा क्यों कर हुआ, जो समा में आ गया फिर वो खुदा क्यों कर हुआ। समा यानी अंबर का विस्तार, और खुले आसमान से मेरा मतलब है हर एक स्टूडेंट की असीमित क्षमता, which can drive change around the world, build resilience in this era of acceleration, and is ready to adopt and reshape diverse areas of our economy. And to achieve this, national education policy is truly a miracle for bringing change, not only the students, but also in the teachers. एक बड़े विद्वान हुए केन रॉबिन्सन, कुछ दिन पहले मैं उनकी एक किताब पढ़ रहा था। उनका कहना है कि एक टीचर की सबसे बड़ी भूमिका ये होगी कि वह सीखने को कितना सुविधाजनक बनाता है। और मैं मानता हूँ कि AI असिस्टेंट, एलेक्सा, सीरी, गूगल होम्स, डिजिटल असिस्टेंट के दौर में टीचर का रोल सबसे अहम होगा, क्योंकि जानकारियाँ तो एक क्लिक पर मिल सकती हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट थिंकिंग, किसी विषय पर नया विज़न, नया दृष्टिकोण वास्तव में एक टीचर ही दे पाएगा। सभी टीचर्स को भी ये समझना होगा कि वो मात्र इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर नहीं है, वह मात्र सिलेबस कंप्लीट करने के माध्यम नहीं है, बल्कि वह नई पीढ़ी के मन और आत्मा दोनों को तराशने के सबसे बड़े कारीगर हैं, आर्टिस्ट हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बड़े साहस के साथ प्रोफेसर कस्तूरी रंगन साहब ने पूरा एक चैप्टर ही टीचर्स के एजुकेशन को समर्पित किया है। और मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं, ख़ास तौर से जो टीचर्स हैं उनसे मैं निवेदन करता हूं, वो एक ऐसा बहुमूल्य चैप्टर है जो मैं मानता हूं कि हर एक टीचर को ज़रूर पढ़ना चाहिए और उसके अनुसार सतत सीखने की आदत भी डालनी चाहिए। विश्व के सबसे मशहूर पोएट्स में से एक गिने जाने रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो भी टीचर थे। 1931 का एक प्रसिद्ध लेक्चर है एजुकेशन बाय पोएट्री। उन्होंने लिखा है कि कॉलेज में मार्क्स देना अनिवार्यता है, बाध्यता नहीं। उन्होंने स्वीकार किया कि अपने टीचिंग प्रोफेशन के दौरान सिर्फ क्लासरूम परफॉर्मेंस पर उन्होंने मार्क्स नहीं दिए, बल्कि वह उसके बियॉन्ड गए और स्टूडेंट्स के नए आइडियाज़, इमेजिनेशन और क्रिटिकल थिंकिंग पर स्टूडेंट्स को मार्क्स दिए। 92 साल बाद भी आज वह लेक्चर रॉबर्ट फ्रॉस्ट का उतना ही रिलेवेंट है जितना उस समय था। मेरा अनुरोध होगा सभी टीचर से कि अगर नहीं पढ़े हैं तो कृपा करके उसे पढ़िए। फ्यूचर ओरिएंटेड प्रतिभाओं को ऐसी लर्निंग ही जन्म दे सकती है। कोविड पैंडमिक की पहली वेव के पश्चात 2020 में एक शोध, एक रिसर्च किया गया और पूरे वर्ल्ड में जितने कार्य हुए हैं उसमें मशीन और इंसान दोनों की भागीदारी का परसेंटेज क्या है। उस समय का रेशियो उस समय आया था कि वर्ल्ड के दुनिया के सभी कार्यों में 33% कार्य मशीन द्वारा हो रहा है और 67% काम ऐसे हैं जिसमें इंसान की ज़रूरत पड़ रही है। इस रिसर्च का एस्टीमेट था कि 2025 में 47% काम मशीन करेगी और 53% इंसान करेंगे। और उसके आधार पर अगर अनुमान लगाया जाए तो मुझे लगता है कि 2030 तक 70 to 75% काम ऑटोमेटेड हो जाएंगे और मात्र 25-30% ऐसे फंक्शंस होंगे जिसमें ह्यूमन इंटरवेंशन की आवश्यकता होगी। मैं मानता हूँ इस तरह के अनप्रेडिक्टेबल फ्यूचर, मशीन और ह्यूमन के बीच प्रतिस्पर्धा में वही टीचर भावी ह्यूमन कैपिटल तैयार कर पाएगा जो सिलेबस से हटकर क्लासरूम में कुछ नया पढ़ाने का खतरा लेगा, उसे नया सीखने को प्रेरित करेगा, उसे अनकन्वेंशनल तरीके से काम करने की सलाह देगा और जो स्टूडेंट्स को अपना सबसे पक्का दोस्त समझेगा वही सबसे अच्छा टीचर होगा। अगर भविष्य के टैलेंट्स तैयार करने हैं तो सबसे पहले हमारे टीचर्स को भी अनजान रास्तों का भय छोड़ना होगा, नए खोज की आकांक्षा जगानी होगी, अपने क्लासरूम में नदी जैसा फ्लो लाना होगा ताकि अनजान रास्तों पर चलने का साहस पैदा हो सके। मित्रों, आप सब प्रोफेसर कस्तूरी रंगन साहब को सुनना चाहते हैं। मैंने जो बात मुझे समझ में आई उसे मोटे तौर पर
बहुत संक्षेप में आपके सामने व्यक्त किया है। एक दो बातें कह करके अपनी बात ख़त्म करूंगा कि तेज़ गति से हो रहे परिवर्तन का अंदाज़ा आप सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि सिर्फ एक एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पर पिछले महीने 90,000 नई टेक्नोलॉजी और ऐप्स लॉन्च किए गए थे। यानी डेली 3,000 नई तकनीक, नए ऐप्स आए हैं जिन्होंने पुराने ऐप्स को या तो रिप्लेस कर दिया है या इररिलेवेंट बना दिया है। पिछले साल रिकॉर्ड 2,78,000 नए इन्वेंशन के पेटेंट तथा 34 लाख आईपी एप्लीकेशन फाइल किए गए थे। 200 से ज़्यादा इनोवेशन मात्र एक महीने में हुए जिन्हें कमर्शियलाइज किया जा रहा है। पूरी दुनिया में कुल बिग डेटा का 89% मई 2021 और मई 2023 के बीच प्रोड्यूस हुआ है। 1970 में एक माइक्रोचिप में टोटल 1,000 ट्रांजिस्टर्स होते थे और आज सिर्फ एक माइक्रोचिप में 5,000 करोड़ ट्रांजिस्टर्स लग रहे हैं। ये परिवर्तन की गति मुझे लगता है कि हमें अभी से अगर हमने नहीं सोचा तो शायद जहाँ हम पहुँचना चाहते हैं हम नहीं पहुँच पाएंगे। विश्व की कुल 8 बिलियन आबादी के बीच 85 बिलियन स्मार्ट सिस्टम एक दूसरे से कनेक्ट होकर विभिन्न सेक्टर्स में परिवर्तन को नई गति प्रदान कर रहे हैं और 2025 तक जो अनुमान है ये संख्या 50 बिलियन स्मार्ट सिस्टम तक पहुंच जाएगी। आज जो यूनिवर्सिटी से पास आउट होकर रियल वर्ल्ड में इंटर कर रहे हैं उन्हें 2025 में रीस्किलिंग की आवश्यकता होगी और वर्तमान में अभी हमारी जो वर्कफोर्स है उसमें से 94% वर्कफोर्स को रीस्किलिंग, अपस्किलिंग की ज़रूरत पड़ेगी। You can see and experience that technology is moving faster than ever before and it is increasingly transforming the way we live, socialize, travel and work. Our workforce is facing a completely different future. So I would say it is time that our classrooms and campus recognize the radical shift and create an ecosystem of acceleration. Classrooms, labs need to reinvent itself on the lines of national education policy, not only to maintain the competitive edge, but also to remain relevant. और यह रिलेवेंस का मुद्दा सिर्फ टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री का नहीं है, बल्कि इस परिवर्तन का प्रभाव ह्यूमैनिटीज़ के क्षेत्र में भी व्यापक रूप से पड़ा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी मानव समाज के भीतर काम करता है। फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी के विस्तार के पश्चात सोशल साइंस, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, आर्ट्स जैसे क्षेत्रों में भी अनेक महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। आज ह्यूमैनिटीज़ के सभी टीचर्स और एक्सपर्ट्स इस बात की चर्चा कर रहे हैं जिस प्रकार तेज गति से हो रहे परिवर्तन के बीच इंक्लूसिव सोसाइटी और एम्पावर्ड इंडिविजुअल के संकल्प को साकार कैसे किया जाए। आज चुनौती इस बात की भी है कि किस प्रकार सोशल मीडिया टूल्स के पावर को फेक न्यूज़ की चुनौती का मुकाबला करने में इस्तेमाल किया जाए ताकि कोविड वैक्सीनेशन के समय फैलाई गई घटनाएं फिर से रिपीट न हों। विजुअल तथा परफॉर्मिंग आर्ट्स में भी टेक्नोलॉजी के परिवर्तन से हो रहे बदलाव अब स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहे हैं। आज 10 से ज़्यादा ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स इन्वेंट हुए हैं जो पिकासो से लेकर वान गॉग की पेंटिंग हूबहू नकल कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के 3 ऐसे नए टूल्स इसी महीने अभी रिलीज़ हुए हैं जो किसी भी फेमस सिंगर की हूबहू कॉपी कर सकते हैं और मसूदी साहब की आवाज़ में भाषण भी कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फोटोग्राफर टेक्नोलॉजी के द्वारा जिस पोज, जिस जगह और जिस स्टाइल का फोटोग्राफ चाहिए वो आज प्रोवाइड कर रहे हैं। अप्रैल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड फोटोग्राफ ने अवार्ड भी जीता है। इसलिए हमारे सामने चुनौती है कि टेक्नोलॉजी एक्सप्लोजन के दौर में ऐसे स्किल्स पर हम काम करें जो रिलेवेंट हों तथा ह्यूमन एक्सपीरियंस पर भी आधारित हो। 2050 में दुनिया कैसी होगी हम आज इसकी कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन मैं समझता हूँ तब भी एनालिटिकल और क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, क्यूरियोसिटी, एक्टिव लर्निंग, इंडिविजुअलिटी, ओरिजिनलिटी, यूनिकनेस, रेजिलियंस, लीडरशिप जैसे जो कोर स्किल्स हैं किसी भी प्रोफेशन में आपकी मदद करेंगे, आपको मुख्य धारा में बना करके रखेंगे। और मैं मानता हूँ
कि अगर बिना कंपेयर किए हुए हर एक स्टूडेंट के यूनिकनेस को तराशा जाएगा तो निश्चित रूप से ये बदलाव हम तेज़ी से ला सकेंगे। वो अपने आप को अडॉप्ट करने और उसके अनुसार जीने की कला सीख सकेगा। मुझे प्रसन्नता है कि इस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर रामसू ने ईमानदारी से और निष्ठा से कोशिश की है कि वास्तव में NEP भी लागू हो, बच्चों के भविष्य को संवारने में भी उन्होंने और यहाँ के सभी टीचर्स ने पूरी मेहनत से काम किया है। इस अवसर पर मैं सभी स्टूडेंट्स के यूनिकनेस, उनके टैलेंट के खिलने की कामना करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि भविष्य उनका अत्यंत ही अच्छा हो, भविष्य में वो अपनी चाहत के अनुसार शीर्ष ऊंचाई पर प्राप्त कर सकें, ऐसी शुभकामना देते हुए मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।